Hello and welcome to Audio Tours Kids. Hope you will be fine. And in today's video, we are going to continue with the chapter Heredity and Evolution. And the topics which we are going to take today are the heredity and sex determination. So what you are going to study today in this video is that how the inheritance takes place. That means how the characters get transferred from one generation to next generation. And at the same time, how the sex of the offspring or the child is determined. So we're going to study in today's video this. Before that, if you have not subscribed to this channel, subscribe it because I'm constantly making and will cover the whole syllabus and will prepare the videos which will help you to prepare well for your examinations. Fine. Moving on, let's have the positive thought. It says that, show me a thoroughly satisfied man and I'll show you the failure. The meaning of saying is that even though we work very hard and prepare a very good project or work or any of the thing which you wanted, but don't get thoroughly satisfied by that because it will remove the scope of improvement. When you think that you have given you 100%, that's fine, but always keep on striving, putting more efforts to improve yourself and the work. Fine. Moving on further. So when we talk about, let's talk that how in the means now we are aware that it is the DNA and the chromosome which is everything, which control all the characteristics. The inheritance takes place through these chromosomes or DNA. But years back, people were not knowing about it. There were so many theories which were given, but at the same time, there were a lot of scientists who studied different phenomena. Like some scientists studied mitosis, some studied meiosis. They understood that yes, the gametes have half the number of the chromosome from that as compared with the parent. At the same time, other scientists studied the mitosis. Some scientists studied the different phenomena which are related with this thing. At the same time, it was the Walter Sutton and this Theodore Boveri. These were the scientists who gave this chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance. What this theory said, this theory gave a very important points at that time as compared with that time. It was very important at that time. What they told that they were the first ones who told that chromosomes are the vehicles of inheritance. That means what they said that it is the chromosomes which are basically carrying the characters from one generation to next generation, and at the same time they said that it is the expression of genes which is present on them. That means what was known as a Mendelian factor earlier or the genes, he said that these are present on the chromosomes which the Mendel was talking about as factors. Fine. Second, they said that gametes are the bridge between two generations. कि जो gametes होते हैं sperm and egg और ovum, these are basically the bridge between two generations, and that's how the two generations are connected. Or fine. Third point, they said that the male and female gametes play equal role in the heredity of or the inheritance of characters. Now we are aware that half of the characteristics we get from the mother and half of the characteristics we get from the father, and that's how a zygote is formed. And zygotes develop into a completely grown fetus, baby, and we are born. Fine. Moving on further, these are the main points, some of the points which I found that these will be important in your understanding I have taken. There were some more points. Okay, let's understand this heredity and chromosomes, how they are related. Fine. When we talk about this heredity or chromosomes, you are aware that the chromosomes are present in this nucleus part of the cell, and then or we can say that chromosome or DNA or genes, they're more or less same thing. Means chromosome is made up of DNA has genes on it. We'll take it further. Now let's understand that this cell is having a nucleus. The nucleus having, you can see these thread-like structures. When you will look at a cell using the microscope, you will find these thread-like structures. Right. That is what the genetic material or the DNA is, which we also call as chromatin. If you take out the nucleus outside and you will observe it here, then you will find chromatin material like a thread-like structures, highly called thread-like structure in that. Now, how and when this chromatin takes the shape of chromosome? Only when the cell is in the condition of division. Cell जब divide होने वाला होता है, उसकी
इनिशियल स्टेजेस में क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को शेप देता है क्रोमोसोम का, और क्रोमोसोम की शेप्स डिफरेंट होती है. फाइन, देयर आर डिफरेंट साइज एंड शेप chromosomes are there, and the number of chromosome in every individual is also different. Not individual means in me and my baby, that will be similar. That means every species, जो हर एक species है, अलग अलग individuals हैं, जैसे monkeys है, chimpanzees है, human beings है, elephant है, dog है, these all will be having different number of chromosomes in them. Fine. So अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें, you can see here there is a one structure by which they are connected, which is called as centromere. सेंट्रोमेयर या सेंटर में होता है. इससे क्रोमोसोम की दोनों ब्रांच जो हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं. Fine, these are the two sister chromatids which are attached here at the centromere. यहाँ centromere होता है. The location of centromere can be different. कुछ में centromere ends पर भी हो सकते हैं, कुछ में center में, कुछ में more towards one end हो सकते हैं. Fine. So this is what the chromosomes are. Chromosomes क्या है? ये आपके DNA ही है बेसिकली, और DNA क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट. अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम क्या है? सो क्रोमोसोम वी हैव सीन दैट इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड इट इज बेसिकली हैविंग द DNA इन ए हाईली coiled position. और इसमें होता क्या है बेसिकली, क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट द DNA complexes. ये क्या है? DNA के complexes हैं. That means a structure which is made from DNA. Now what is present other than DNA in this? इसमें कुछ होते हैं histones, proteins and DNA. histones, proteins and DNA, ये तीनों मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम्स. ओके, एंड ये जो क्रोमोसोम होता है, इसके आसपास हिस्टोन्स और प्रोटीन्स इसलिए होते हैं ताकि जो DNA है ये किसी एंजाइम के इफेक्ट से या किसी भी केमिकल के इफेक्ट से ब्रेक डाउन ना हो जाए. वो कोई भी चीज़ जो सेल के अंदर केमिकल्स है वो उस DNA को डैमेज ना कर दे, उसके लिए इसके आसपास ये प्रोटेक्टिव मटेरियल होता है. फाइन. और अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम जो है इसके अंदर होता क्या है, इट इज़ बेसिकली DNA. और DNA में क्या होता है, DNA हैज़ अ कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. DNA में होता है कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इट्स अ वेरी सीक्रेट टाइप ऑफ थिंग, ओके, जिसको हमने अभी डिकोड कर लिया है बेसिकली साइंटिस्ट ने, कि ह्यूमन DNA में कौन सा पार्ट क्या चीज़ को कंट्रोल कर रहा है. फाइन. अगर हम बात करें DNA की, DNA कैन बी रेप्लिकेटेड. DNA रेप्लिकेट हो सकता है. मतलब क्या है इसका, कि इसका कॉपी, दैट मीन्स रेप्लिका क्रिएट हो सकता है. दैट यू आर अवेयर. व्हेनेवर द सेल इज अंडरगोइंग द डिविजन, सेल जब डिविजन होने की स्टेज में जाता है, जब तो आपको पता है कि DNA या जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका एक कॉपी और क्रिएट होता है. फाइन. दैट इज कॉल्ड रेप्लिका, और रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है. सेकेंड थिंग, दैट दिस कैन बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन. हमें पता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो बेसिकली इन क्रोमोसोम्स के थ्रू होती है. फाइन. एंड थर्ड इज ट्रांसलेटेड. ट्रांसलेटेड का मतलब ये है, बिकॉज यू आर अवेयर दैट हमारे सोमेटिक सेल्स में, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जो एक्सेल है, जो सेल्स से बने हैं, डिफरेंट सेल्स से बने हैं, उनमें जो DNA प्रेजेंट है वो कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स या अपने अपने प्रोसेसेस के लिए पर्टिकुलर केमिकल्स बनाता है. और वो केमिकल्स कैसे बनते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके जो कि हमारे DNA में स्टोर है. ये जो DNA है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, ये कन्वर्ट होती है RNA में, और RNA से ये फिर बनते हैं. RNA को यूज़ करके जो हम बोलते हैं हमारे राइबोसोम्स, जो कि हमारा प्रोटीन फैक्ट्री जो प्रोसेस होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन इट. और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इन्वॉल्व होते हैं. और फिर इसी इंफॉर्मेशन को जो कि DNA से RNA में आई है और RNA से इंफॉर्मेशन है, उसको यूज़ करके हमारे सेल्स बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड डिफरेंट केमिकल्स. तो इससे ये है कि क्रोमोसोम हमारा नॉट ओनली इन्वॉल्व इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, लाइक कैरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, बट ये हमारे सारे बेसिक प्रोसेसेस में यूज़ होता है. फाइन. मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम बात करें हमारे ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में आपको पता है वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, या फिर हम कहें हमारे पास 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के. फाइन. अगर हम बात करें हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, 23
पेयर्स हैं, फाइन। बट अगर हम गेमीट्स की बात करें, जो हमारे पास गेमीट्स फॉर्म होते हैं आइदर स्पर्म और द एग, इन दोनों गेमीट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज यू आर अवेयर दैट अगर 23 एक पेरेंट से आएगा, 23 दूसरे पेरेंट से आएगा, तभी टोटल 46 हो जाएगा। अदरवाइज अगर 46 आएगा तो हर एक जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ता ही जाएगा, एंड दैट इज अ बेसिकली एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि वो इंडिविजुअल कैसे में डेवलप होगा। फाइन, नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम का जो नंबर होता है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी क्रोमोसोम के नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। लाइक इफ यू सी डॉग्स हैव 78 chromosomes, but you're aware that dogs are not more complex than us. We have much more complex system than the dog. Fine, and there is a one fern which has more than, there are some other things also which has more than 1000 chromosomes, but it doesn't mean that there will be much more complexity in them. Fine, moving on further, when we talk about that how chromosomes play a link between the parent and the offspring, कि parent और offspring के बीच में लिंक कैसे है। फाइन, अगर हम बात करें इसकी, लेट्स डिस्कस दैट कि जो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें, कुछ क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स और सोमेटिक क्रोमोसोम्स, और सेकेंड टाइप होते हैं एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सोमेटिक की या ऑटोसोम्स की, सोमेटिक जैसा कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज द सोमेटिक सेल्स बेसिकली इन्वॉल्व हियर, एंड सोमेटिक cells वो cells हैं which are not related with the reproductive function, they are the other body cells। तो सोमेटिक क्रोमोसोम्स क्या हैं? ये वो क्रोमोसोम्स हैं जिनमें सोमेटिक सेल्स के लिए जो फंक्शनिंग चाहिए होती है, या हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए सोमेटिक सेल्स के अंदर जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उसका सबका इंफॉर्मेशन स्टोर होगा इन ऑटोसोम्स के अंदर। फाइन, जो कि हमारे 23 में से 22 हमारे ये हैं सोमेटिक क्रोमोसोम्स। फाइन, अगर हम बात करें एलोसोम्स की या सेक्स क्रोमोसोम की, ये क्या डिटरमाइन करते हैं? दिस डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। फाइन, और ये क्या बेसिक रोल प्ले करते हैं कि वी विल स्टडी इन लाइक नेक्स्ट। जो नाउ अंडरस्टैंड, जो ह्यूमन बींग्स है उसमें आपको पता है दैट यू आर अवेयर दैट वी हैव 46 क्रोमोसोम, उसमें से 22 पेयर या 44 क्रोमोसोम्स हमारे सोमेटिक क्रोमोसोम्स हैं। फाइन, जो क्या कंट्रोल करते हैं? सेल का ग्रोथ कंट्रोल करते हैं, सेल का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं, एंड द लास्ट पेयर जो हमारा 23rd पेयर है, ये हमारा डिटरमाइन करता है सेक्स को। और अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स के अंदर यू आर अवेयर दैट इन मेल पर्सन, एक मेल पर्सन के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होता है? 22 हमारे सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं और 23rd पेयर होता है। ये सिमिलर पेयर नहीं है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम है तो दूसरा वाई क्रोमोसोम है। फाइन, तो ये जो एक्स और वाई है यही है हमारा बेसिकली हमारा सेक्स क्रोमोसोम जो कि मेल पर्सन में प्रेजेंट होता है। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल ह्यूमन बींग की बात करें, तो हमारे में प्रेजेंट होता है इन फीमेल ह्यूमन बींग्स 22 सोमेटिक क्रोमोसोम प्लस जो नेक्स्ट जो 23rd पेयर है जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है, ये सिमिलर पेयर है, दैट मीन्स सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं, दैट इज एक्स क्रोमोसोम्स। फाइन, सो अब जो पॉइंट आता है वो यही है कि जो ह्यूमन बींग्स है उसमें जो मेल पर्सन है उसमें क्या होगा कि 22 के साथ एक्स भी जा सकता है और किसी किसी गैमीट में 22 के साथ वाई भी जा सकता है। देयर आर इक्वल चांसेस कि एक में एक्स चला जाएगा, एक में वाई चला जाएगा। फाइन, सो बेसिकली जो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, दैट इज द मेल गैमीट विच डिटरमाइन कि वो जो ऑफस्प्रिंग बॉर्न होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। फाइन, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल गैमीट में हर एक गैमीट में 22 सोमेटिक प्लस one X chromosome 23rd, so every gamete is going to get the X chromosome only from the female, जो कि सिमिलर है। फाइन, सो मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम बात करें, साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट जस्ट द सेक्स विच इज़ डिटरमाइंड बाय दिस 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। जो हमारा 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है XY एंड XX, इसमें कुछ सोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का इंफॉर्मेशन भी स्टोर होता है, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को या उन कैरेक्टर्स को जो कि 23rd पेयर या सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, उनको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स।
लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर कि ह्यूमन बींग्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली यूजिंग दिस डायग्राम. दैट अगर हम बात करें कि फ्रॉम द मेल पर्सन, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दीज टू स्पर्म्स. फाइन, देयर कैन बी अ स्पर्म विद द एक्स क्रोमोसोम and there can be a sperm with the Y chromosome. अगर एक मेल पर्सन, बिकॉज यूर अवेयर दैट मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो कौन से X एंड Y, तो किसी में हमारे कुछ स्पर्म्स में X जाता है, कुछ स्पर्म्स में Y जाता है. फाइन, बट फीमेल एज इट इज हैविंग शी इज हैविंग X क्रोमोसोम ओनली, तो हर एक एग के अंदर X ही जा रहा है. फाइन, इसमें क्या होगा, 22 सोमेटिक प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम, 23rd पे 23 हमारे क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. फाइन, अब देखिए अगर ये स्पर्म जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम था उसने एग के साथ फ्यूज किया या फर्टिलाइज किया, तो क्या बन रहा है, एक जाइगोट जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है. फाइन, now and if the sperm fuses with this Y chromosome containing sperm, अगर एग का फ्यूजन होता है इस स्पर्म के साथ तो हमारे पास जाइगोट बनता है जिसमें X एंड Y क्रोमोसोम है. अभी जो Y क्रोमोसोम है इट इज बेसिकली हैविंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपिंग एन ऑफस्प्रिंग इनटू अ मेल इंडिविजुअल. ओके, तो अगर ये जिस भी इंडिविजुअल के अंदर ये Y क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है, दैट मीन्स दैट ऑफस्प्रिंग इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ मेल पर्सन ऑफ द दैट स्पीशीज. फाइन, दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स ओनली. नाउ ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर मेल पर्सन में अलग अलग है, हमारे पास X एंड Y है, तो मेल is determining the sex of the child. From the female, it is only the X chromosome. It means every egg is having the same set of this 23 pair, 22 somatic plus X. But the male can be giving 22 somatic plus X or 22 somatic plus Y chromosome. ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है कि it is a female which is having the different sets and which determine the sex of the child. तो ये अलग अलग species में अलग अलग है. It is not that it is always the male which is determining or the female. It depends. Now let's understand, हमने यहाँ पे वही समझा है कि if the offspring will receive X chromosome from the mother but the sex is determined by the chromosome which is inherited from the father. अगर वो X chromosome receive करता है, if it receives X chromosome then the child will be here if it receives X then it will be a girl. ये क्या होगी, a girl. And if that offspring receives a Y chromosome then it will be a boy. Okay, sorry for this typing error. Now there are, other than this sexual determination by the chromosomes, there are some other factors also which determine the sex of the some of the individuals. जैसे ये क्या है, नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ एन इंडिविजुअल इज डेवलपिंग इनटू ए फीमेल और ए मेल डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, दैट मीन्स कि वो जो स्पीशीज है या जो इंडिविजुअल है उसके अंदर बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू डेवलप इनटू अ मेल एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू डेवलप इनटू अ फीमेल, दोनों चीज़ें प्रेजेंट थी. अब डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस की कैसी है, किसके लिए फेवरेबल है, वो उस इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्रोकोडाइल की, क्रोकोडाइल्स एट अ लो टेम्परेचर इंड्यूसेस फीमेलनेस. अगर लो टेम्परेचर है तो क्रोकोडाइल फीमेल में डेवलप होता है. अगर हाई टेम्परेचर है तो क्रोकोडाइल बेबीज will develop into male. तो ये क्या हो रहा है, दैट मीन्स कि क्रोकोडाइल के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो टू डेवलप इनटू अ मेल एंड टू डेवलप इनटू अ फीमेल दोनों थी, तभी वो अलग अलग में डेवलप हो पा रहा है. ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता है. ह्यूमन बींग्स में आप देख रहे हैं ये ड्यूरिंग द गेमीट्स फॉर्मेशन एंड द फर्टिलाइजेशन ही डिसाइड हो जाता है कि ये कौन से ऑफस्प्रिंग में डेवलप होगा. फाइन, अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें टर्टल्स की, टर्टल्स में भी सिमिलर होता है. अगर 28 डिग्री बिलो टेम्परेचर है तो ये मेल में डेवलप होते हैं. अगर 33 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो फीमेल में डेवलप होता है. अगर हम बात करें कुछ ऑर्गेनिजम्स में इट इज़ डिसाइडेड बाय द न्यूट्रिशन ऑल्सो, लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट हनी बी लास्ट टाइम कि हनी बी में कौन क्वीन में डेवलप होगा, दैट मीन्स द फीमेल, एंड कौन वर्कर या ड्रोन में डेवलप होगा, इट इज डिसाइडेड बाय द न्यूट्रिशन, विच टाइप ऑफ फूड दे आर फेड.
So there are several factors which determines the sex, but in human beings it is the gametes and the chromosome which a gamete is receiving decides that. Fine, or which gametes are fusing or the fertilizing to form the zygote, that determines the sex. Okay, now so you can understand that these sex is determined by environmental factors, some of the environmental factors. Non-allosomic genetic determination is also there, that there is no particular sex chromosome which is determining this, and there is allosomic sex determination also कि जो sex chromosome है वो किस गेमीट में ट्रांसफर होता है और किसका फर्टिलाइजेशन होता है एग के साथ, ये डिटरमाइन कर रहा है सेक्स को. सो दिस इज व्हाट द हेरिडिटी एंड द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड लिटिल बिट अबाउट द डिफरेंट other organisms also. Thank you for watching this video. If you have any question left, please write in the comment box. If you like the video, please share it, subscribe to the channel, and I'm constantly trying to make such videos which will be helpful for you, and I'm trying to make a little bit fast as well. Thank you for watching, dear viewers. Take care. Bye.